નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠક સ્કૂલ અમરેલી. આજે હું વિષય હિન્દી ધોરણ 5 અને પાઠ 8મો ભણાવીશ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠ 8મો એનું નામ છે ભરત મિલાપ. આ પાઠ હું હિન્દીમાં ભણાવતા પહેલાં તમને ગુજરાતીમાં એની પૂર્વ ભૂમિકા કહી દઉં. આ એક સરસ મજાનો રામાયણમાંનો એક પ્રસંગ છે, જેમાં શ્રી રામ ભગવાન એની માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરી અને તે વનવાસની સજા માટે વનમાં જવા તૈયાર થાય છે. એ આખો સરસ મજાનો પ્રસંગ નાટક રૂપે અહીંયા આ પાઠમાં મૂક્યો છે. તો હું આજે ધોરણ 5 વિષય हिंदी इकाई 8 भरत मिलाप पढ़ाने जा रही हूँ. तो मैं आपको उसके बारे में पूर्व भूमिका बताती हूँ. माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए. देखो, રામાયણમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતીમાં તમને કહું, ઘણા બધા પાત્ર છે. શ્રી રામ ભગવાન છે, એમનો નાનો ભાઈ લક્ષ્મણ. શ્રી રામ લોકો 4 ભાઈઓ હતા અને દશરથ રાજા એમના પિતા હતા. કઈ કૌશલ્યા અને સુમિત્રા એમ 3 દશરથ રાજાને રાણીઓ હતી, જે શ્રીરામની 3 માતાઓ હતી. અને 4 ભાઈઓ હતા. અને કઈના કહેવાથી શ્રી રામ ભગવાનને દશરથ રાજાને આપેલું વચન, એની આજ્ઞાનું પાલન કરવાથી તે વનમાં જાય છે. તો સરસ મજાનો આ નાટક રૂપિયા પાઠ આપણે રામાયણનો એક પ્રસંગ જોઈએ. माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए. उनके साथ सीता भी गई. भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाओं रखकर उन्हें सेवक की भांति राजकाज किया. इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું તમને ગુજરાતીમાં આ પાઠ સમજાવતી જઈશ, વચ્ચે કહેતી જઈશ, એટલે તમને આ પાઠ સ્પષ્ટ રીતે સમજાઈ જાય. એટલે એમ કહે છે કે ભાઈ હોય તો, આ પાઠનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે ભાઈનો પ્રેમ. ભાઈ હોય તો ભરત જેવો. રામ અને ભરત બંને ભાઈઓનો કેટલો આદર્શ પ્રેમ હતો, એ સરસ મજાનો નાટક રૂપે આપણને સમજાવે છે. તો જ્યારે રામને 14 વર્ષનો વનવાસ થાય છે અને ભરત ત્યારે હાજર નહોતા, અને કૈકેયીની એવી ઈચ્છા હતી કે મારો પુત્ર, કૌશલ્યનો પુત્ર શ્રી રામ ભગવાન અને કૈકેયીનો પુત્ર ભરત, એટલે મારો પુત્ર રાજપાઠ કરે અને રાજગાદી ઉપર બેસે. પણ ભાઈ એવું ઈચ્છતો નહોતો કે મોટો ભાઈ વનવાસ ભોગવે અને હું રાજપાઠ ભોગવું. એટલે એણે ભાઈના પ્રેમ ખાતર, એણે ભાઈ ન હોવા છતાં પણ ભાઈની ગેરહાજરીમાં ભરતે એને રાજ સિંહાસન ઉપર શ્રી રામ ભગવાનના ખડાવું એટલે એના પગર, એના ચપ્પલ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખડાવું શબ્દ હિન્દી છે, એટલે કે એના પગના ચપ્પલ એ રાજ સિંહાસન ઉપર મૂકીને એની એ લાકડાની પાદુકા કહેવાય એની, જો હિન્દીમાં કહીએ ને આપણે તો, એ સિંહાસન ઉપર મૂકીને રાજપાઠ રામની જગ્યાએ રામનું સંચાલન તે પોતે કરતા હતા. तो पाठ शुरू करूँ छूँ, नाटक शुरू करूँ छूँ. आ नाटक है, આપણે જોઈએ. वन का एक भाग. कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं. पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं. જો પ્રસંગ શરૂ થતાં પહેલાં નાટકમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્ટેજ ઉપર પહેલાં દ્રશ્ય બતાવવામાં આવે છે. પડદો, સ્ટેજ ઉપર પહેલાં દ્રશ્ય બતાવવા માટે પડદો ખુલે. નાટકમાં તમે જોયું છે વિદ્યાર્થી માટે, પડદો ખુલે એટલે શું જોવા મળે? જે વિષય ઉપર, ટોપિક ઉપર નાટક હોય ને એનું ત્યાં દ્રશ્ય ઊભું કર્યું હોય છે. એટલે કે વનનું દ્રશ્ય ઊભું કર્યું સ્ટેજ ઉપર. અને કુટિયા કે બહાર, કુટિયા એટલે કે ઝૂંપડી, આપણે ગુજરાતીમાં ઝૂંપડી કહીએ, હિન્દીમાં ઝૂંપડી, કે બહાર राम सीता बैठे हुए थे और पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं. આ આખું દ્રશ્ય આપણી સામે પ્રસ્તુત થાય છે. રામ સીતાઓ બહાર ઝૂંપડીની બહાર બેઠા હોય છે અને લક્ષ્મણ ધનુષ બાણ લઈને બાજુમાં ઊભો હોય છે. દ્રશ્ય એક શરૂ થાય છે. આપણે આટલું જોયા પછી હવે નાટકનો એકાંકી શરૂ થાય છે. જોઈએ. રામ બોલે, 2 મીંડા છે, એનો મતલબ એમ છે બોલે છે. भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है. देखो, नाटक में 3 पात्र है, राम, लक्ष्मण और सीता.
और ये नाटक का दूसरा जो भाग है, दृश्य जो दूसरा है, उसमें भरत और एक नागरिक भी है। ये इसलिए इस एकांकी में कुल 5 पात्र है। तो श्री राम बड़े भाई लक्ष्मण को कह रहे हैं, देखो तो कोई आवाज़ कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण इधर उधर देखकर, देखो देखने की एक्टिंग करना। यहाँ આ એક એકાંકી છે, એટલે આપણે નાટક ભજવતા હોય એ રીતે જ વિદ્યાર્થી મિત્ર આપણે અનુભવ કરવાનું છે। એટલે લક્ષ્મણ જાણે ચારે બાજુ જોતો હોય એમ જોવાની એક્ટિંગ કરે છે। इधर उधर देखना એટલે આજુબાજુ જોવું। પ્રભુ સાमने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। લક્ષ્મણ પોતાના ભાઈને, મોટા ભાઈને માનથી કહે છે કે પ્રભુ कुछ लोग दूर से आते दिखाई दे रहे हैं। राम बोले कौन लोग है, जरा ध्यान से देखो। उसने कहा कि जरा ध्यान से देखो कौन लोग है। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, फिर वो ध्यान से देखता है और कहता है, अरे ये तो भरत है। वो दूर से ही अपने भाई को पहचान गए कि ये तो भरत है। साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। देखो लक्ष्मण ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं यहाँ और कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, भरत आ रहा है, उसके साथ बहुत सारे लोग हैं। उसे ऐसा लगा कि हमारा भाई हमारे साथ लड़ने आ रहा है, इसलिए वो श्री राम जी को कहते हैं सावधान हो जाना। सावधान हो जाना, चौकन्ना हो जाना, एक रूढ़ी प्रयोग है विद्यार्थी मित्रों। तो वो श्री राम जी को लक्ष्मण जी कहते हैं कि चौकन्ने हो जाओ भैया, सावधान हो जाओ, शायद वो लोग लड़ने के लिए, हमारे साथ लड़ने झगड़ने के लिए आते होंगे। श्री राम कहते हैं हंसते हुए, देखो वो प्रभु है, सब जानते हैं, वो हंसते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो हम आगे पढ़े। भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। सरस बात करी राम एम की, तो भाई लक्ष्मण तुम कुछ बात जाने बिना ही शक करने लगते हो। शक करना यानी शंका करना, शंका करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। એટલે એમ કે છે તું આટલા બધા વર્ષ આપણે આપણા ભાઈ સાથે મોટા થયા, એની સાથે રહ્યા ને તું આપણા ભાઈને નથી ઓળખતો। તો લક્ષ્મણ શું જવાબ દે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ જોઈએ। लक्ष्मण उत्तेजित होना यानी गुस्सा करना, गुस्सा होना, ये भी एक मुहावरा है। तो गुस्से में लक्ष्मण कहते हैं, क्या कहते हैं, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। वो गुस्से में था लक्ष्मण और उसने मन में जो बात आई उसने बता दी कि मैं पहचानूं क्यों नहीं अपने भाई को, जिस माँ ने वनवास दिया तुम्हें उसी का तो बेटा है। तो माँ बेटे दोनों एक ही तरह के हो गए, ऐसा लक्ष्मण कहना चाहते हैं। सीता, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। देखो राम की पत्नी सीता भरत की भाभी बोलती है, इसमें भरत का क्या दोष। माँ ने जो पिताजी को वचन मांगा, इसमें उसके पुत्र भरत का क्या दोष, ऐसा भाभी कहती हैं। लक्ष्मण कहते हैं लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। એ કે લ્યો હવે આ બાજુ જ આવી ગયા છે એમ કહેવા માંગે છે। અહીંયા નાટકનો પહેલો ભાગ વિદ્યાર્થી મિત્રો પૂરો થાય છે। આપણે આ પાઠમાં જોયું કે રામાયણનું એક દ્રશ્ય છે। રામાયણમાં શ્રીરામ ભગવાનને 14 વર્ષનો વનવાસ થાય છે અને વનમાં તેઓ ઝૂંપડી બાંધીને રહે છે અને ઝૂંપડીની બહાર શ્રીરામ, લક્ષ્મણ અને સીતાજી છે અને એવામાં કોઈ દૂરથી આવતું એવું દેખાય છે અને જુએ છે તો ભાઈ ભરત છે અને ભરત શા માટે આવે છે એવું અનુમાન બાંધતા ભરત શ્રીરામની નજીક આવી જાય છે। અહીં નાટકનો પહેલો ભાગ પૂરો થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્ર અને નાટકનો બીજો ભાગ શરૂ થાય છે, यानी कि दृश्य दूसरा। नाटक जो होता है उसका पहला भाग पूरा होता है तो पर्दा गिरता है, फिर दूसरा भाग शुरू होने से पर्दा उठता है, नेपथ्य कहते हैं उसे। फिर पर्दा उठता है और दूसरा दृश्य जो हमारे आँख के सामने दिखाई देता है वो देखें हम क्या है। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं, उनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं, वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। देखो विद्यार्थी मित्र दूसरा दृश्य क्या है, तो कि
पर्दा उठता है और दृश्य के सामने वही झोपड़ी में श्री राम लक्ष्मण और सीता जी जहाँ अपने स्थान पर बैठे थे वही है। और चौथा पात्र आता है, वो है श्री भरत जी दौड़ते हुए आकर कुटिया के निकट आकर वो आँख में उसका वो कैसे है तो कि उसकी आंखों में आंसू बह रहे, वो रो रहे और आते ही भगवान श्री राम के प्रभु के चरणों में पड़ते हैं, इसलिए उसके पाँव छूते हैं और राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। यह दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत होता है और राम भरत को उठाकर अपने गले लगा लेते हैं। भाई का देखो पहले दूसरे दृश्य में ही प्यार दिखाई देता है। भरत रोते हुए भाई श्री राम के गले लगते हैं। गले लगना ये भी विद्यार्थी मित्र मुहावरा है, यानी प्यार से मिलना। दोनों भाई प्यार से मिलते हैं, यह दूसरा दृश्य हमें दिखाई देता है। फिर आगे भरत रोते हुए, देखो भरत बोलता है। अब भरत रोते हुए कहता है, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, एम के जे भगवान એટલે પોતાના ભાઈને ભગવાનની જગ્યાએ માને છે, એમ કે જે ભગવાન મને માફ કરો। રડતા પ્રભુ પાસે માફી માંગે છે। आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। भरत कहता है कि तमने वनवास देवामां मारो काई वच्चे काई मारो इरादो नहीं, हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हो, तमे माराथी मोटा छो, आप ही तो राजा बनना चाहिए। तमे माराथी मोटा छो, तमे जो राजा बनવું જોઈએ, તમે જ રાજા બનો। मैं आपको लेने आया हूँ, હું તમને લેવા આવ્યો છું। आप सब अयोध्या चलिए। અને પછી લક્ષ્મણ અને સીતાની સામે જોઈને ભરત બોલે છે, आप सब लोग अयोध्या चलिए, अपने गांव अपने देश चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है। साथ में वो भरत किन को लेकर आता है विद्यार्थी मित्रों, तो वो सब अयोध्यावासी हैं। अयोध्यावासी नगरवासियों को लेकर आते हैं और कहते हैं ये सबको भी यही इच्छा है कि श्री राम प्रभु घर अयोध्या लौट चले, निराश न कीजिए प्रभु। અને ભરત આગળ કહે છે કે મને તમે નિરાશ ન કરતા ભગવાન, પ્રભુ તમે ચાલો, અને આપણા અયોધ્યામાં બધા તમારી રાહ જોવે છે। આ દૃશ્ય નાટકનું ભજવાય છે। ભરતના સંવાદો આપણે જોયા વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે શ્રી રામ શું એનો જવાબ આપે છે, શું કહે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ। राम, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। देखो विद्यार्थी मित्र, श्री राम कहते हैं कि तुम भी तुम्हारी जगह सही हो, मैं भी मेरी जगह सही हूँ। तुम कहते वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही मेरा हेतु है। वो वनवास में पूरा करके माता पिता की आज्ञा का पालन करके ही मैं अयोध्या लौटूंगा। तो एक नागरिक बोलता है, दोनों भाइयों के बीच एक साथ में आए कुछ लोग में एक व्यक्ति कहता है, नहीं प्रभु आपको हमारे साथ चलना ही होगा। वो भी बहुत प्यार से श्री राम जी को कहते हैं, आपको हमारे साथ अयोध्या चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। देखो विद्यार्थी मित्रों, यह नागरिक है जो वो श्री राम को अपने कर्तव्यों के बारे में बताता है कि आप हमारे राजा है और राजा का कर्तव्य प्रजा को सुखी करना है, इसलिए आपको अयोध्या वापस आना पड़ेगा। तो राम क्या कहते हैं, वो नगरवासी को क्या उत्तर देते हैं हम देखें। तो राम कहते हैं, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। कि तुम कहते हो कि मैं राजपाट करूँ, ये मेरा कर्तव्य है, पर सबसे पहला मेरा कर्तव्य श्री राम जी कहते हैं माता पिता की आज्ञा का पालन करना। मैं माता पिता की आज्ञा का पालन पहले करूँ, यह मेरा कर्तव्य मैं पहले पूरा करूँ, फिर मैं राजगादी संभालने के लिए अयोध्या वापस आऊँगा। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करने के न लौटूँ तब तक भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। श्री राम
जो श्री राम भगवान है, प्रभु है, वो अपना सब कारोबार अपने बड़े भाई राम भरत को देते हैं। भरत को कहते हैं कि वो सब मेरी जगह संभाल लेगा, आप उसे राजा माने और यह मेरा आदेश है। राजा कहते हैं तुम मुझे राजा मानते हो तो मैं आपको आदेश देता हूँ, आपको आज्ञा करता हूँ कि आप भरत को ही अब राजा माने। भरत कुछ सोच कर, देखो फिर भरत बोलता है, वो कुछ सोच कर लेकिन विचारीने કહે છે अच्छा तो કે સારું प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती उसे स्वीकार करें। फिर भरत कहते हैं कि तो आप तो अयोध्या आने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं एक आज्ञा करता हूँ और यह मेरी विनती है, वो विनती मेरी विनती आप स्वीकार करें। तो वो भरत की क्या विनती है, आप विद्यार्थी मित्रों देखिए। विनती यानी आदेश यानी हुक्म करना, और ये विनती क्या है उनकी विनती, तो वो हम देखे आगे। राम बोले क्या चाहते हो, उसने भरत को कहा कि तुम क्या चाहते हो। भरत ने कहा मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दो। देखो विद्यार्थी मित्रों, भरत बोले कि तो भाई आपके पैर की जो खड़ाऊ है वो लकड़ी की बने पादुका, આપણે પગમાં ચપ્પલ કહીએ ને ગુજરાતીમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ હિન્દીમાં એને પાદુકા ખડાઓ કહેવાય, એ તમે મને દઈ દો એમ કહે છે। રામ ખડાઓ को क्या करोगे? રામને નવાઈ લાગી, એણે પૂછ્યું કે પાદુકા, મારી ચરણ પાદુકાને તું શું કરીશ એમ। तो भारत कहे छे उन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। देखो कितना बहुत ही अच्छा, कितना सुंदर विचार भरत का है। भाई भाई का प्रेम ये वाक्य में दिखाई देता है। विद्यार्थी मित्रों, भरत कहता है कि आप नहीं लौटते तो आपकी खड़ाओं में सिंहासन पर रख कर आपका राजकाज में आपके नाम का चलाऊँगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गद हो जाते हैं। देखो विद्यार्थी मित्रों, फिर यह नाटक का दृश्य देखकर हम सब भी गदगद हो जाते हैं। गदगद होना ये भी एक मुहावरा है। तो गदगद होना यानी पुलकित हो जाना, आनंदित हो जाना। श्री भरत के विचार सुनकर राम, लक्ष्मण और सीता सब लोग आनंदित हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगा लेते हैं। फिर से दोनों गले लगते हैं, प्यार से मिलते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजनों राम और भरत की जय जय बोलते हुए विदा होते हैं। देखो विद्यार्थी मित्रों, फिर यह नाटक का दूसरा अंक भी खत्म होता है। यहाँ ये एकांकी पूर्ण होती है। हमने एकांकी में देखा कि श्री राम और भरत दोनों भाई आपस में कितना प्रेम करते हैं। ये रामायण का बहुत सुंदर प्रसंग हमने एकांकी के रूप में पढ़ा। तो मुझे आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। विद्यार्थी मित्रों, यह एकांकी पाठ आप भरत मिलाप एक बार शांति से पढ़ लेना, उसके शब्दार्थ भी एक बार पढ़ लेना। मैंने बीच बीच में जो मुहावरे पाठ में आते थे उसके बारे में समझाया, वो भी आप वाक्य प्रयोग करके अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में विद्यार्थी मित्रों लिख लेना। तो अब हम अभ्यास का प्रश्न बारी बारी से देखते हैं। मैं यहाँ अभ्यास स्वाध्याय आपको आज ही करा दूँ। तो प्रश्न पहला है प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तो विद्यार्थी मित्रों, हमने पाठ में देखा था कि भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण जी बोले थे शायद वे लोग हमसे लड़ने के लिए आ रहे हुए, यह शंका हुई थी। दूसरा प्रश्न है, राम को देखकर भरत ने क्या किया? तो राम को देखकर भरत उसके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। यह भी हमने पाठ में देखा था। राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? तो उसका उत्तर आएगा, माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वो वनवास पूरा करना चाहते हैं। चौथा प्रश्न, राम ने नगरजनों से क्या कहा? विद्यार्थी मित्रों, सब प्रश्न के उत्तर आपको ध्यान से सुनकर अपनी कॉपी में लिखना है। परीक्षा में ये कोई भी प्रश्न आए, कोई भी पाठ में, तो आपको आसानी से उसका उत्तर आना चाहिए।
तो नगरजनों को श्री राम कहते हैं कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक तुम भरत को ही अपना राजा मानना, ऐसा बोले थे ना श्री राम जी। तो यह प्रश्न का उत्तर है। और आखिर प्रश्न, भरत की जगह आप होते तो क्या करते। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। उसके बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं विद्यार्थी मित्र। भाई भाई के प्रेम के बारे में आपको बताना है कि भरत की जगह तुम होते तो क्या करते। मैं भरत की जगह होता तो विद्यार्थी मित्रों मैं राम को अयोध्या लेकर ही लौटता। माता पिता की आज्ञा का पालन करने का उसका उद्देश्य माँ को बुलाकर पूरा कर लेता, उसको यह बात यहाँ पर ही खत्म कर देता और राम को अयोध्या लेकर ही जाता। किसी भी प्रकार राम को मना ही लेता, पर राम को वनवास करने में नहीं देता। पर ये तो श्री राम और भरत की बात है। तो आप ऐसा उत्तर आपके रूप में लिख सकते हैं। आपके विचार आप भरत की जगह रखकर बता सकते हैं विद्यार्थी मित्र। फिर उसके बाद प्रश्न दूसरा है, तो उसमें कई रेपर यहाँ चिपकाए और कोई रेपर यहाँ चिपकाए और दिए गए रेपर का देखकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। विद्यार्थी मित्रों રેપર એટલે કે કાગળનું કવર, કોઈ પણ વસ્તુ આપણે લઈએ ને એના ઉપર કવર હોય એને અંગ્રેજીમાં રેપર કહેવાય છે, ગુજરાતીમાં કવર કહેવાય છે। એમાં કંઈક ને કંઈક પ્રિન્ટ છાપેલી હોય છે, એ જે અંદર વસ્તુ ભરી હોય છે એના વિશે આપણને માહિતી આપી હોય છે। તો રેપર હું લાવી છું અને તમને સમજાવું છું, એના સવાલના જવાબો અહીંયા આપણે ધ્યાનથી જોઈએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો આ શીતલ ફૂડ સેવનું પેકેટ છે અને અહીંયા બારકોડ નંબર અહીંયા આપેલો છે। હું તમને પહેલાં રેપર બતાવી દઉં, પછી પ્રશ્નનો જવાબ આપણે સોલ્વ કરીએ। પછી એમાં શું શું વસ્તુ છે એના વિશે અહીં લખ્યું છે, પછી અહીંયા એનો વજન લખ્યો છે, ભાવ લખ્યો છે, દિનાંક લખી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ, હવે આપણે પ્રશ્નના उत्तरों આ રેપર જોઈને દેવાના છે। यह किसका रेपर है, तो मैंने आपको कहा यह शीतल कंपनी जो प्रोडक्ट है उसकी सेव, यह नमकीन का रेपर है। इस रेपर पर क्या कीमत छपी हुई है। देखो विद्यार्थी मित्रों, हमें कीमत MRP, तो यहाँ कीमत लिखी है MRP 5 रुपये, तो 5 रुपये है। ये आपको रेपर, आपका रेपर ढूंढकर आपको यहाँ अपने उत्तर लिखने हैं। उसका पैकिंग कब हुआ था, तो दिनांक पैकिंग की है 6 तारीख 11 महीना और 2020 को इसका पैकिंग हुआ था। यह तो जनवरी महीना चल रहा है, इसके 2 महीने अगाऊ से उसका रेपर का पैकिंग हुआ था। देखो विद्यार्थी मित्र, ये रेपर तो खाली है पर ये उनकी दिनांक भी रेपर में दी गई है। और उसके बाद उसके अलावा रेपर में कौन कौन सी उपयोगी बातें छपी हुई हैं मैंने आपको बता दिया है कि उसका वेट होता है, दिनांक होती है, वो बारकोड नंबर होते हैं। ये सब आप अपने रेपर में जो दिखे वो लिखना है कि उसमें क्या क्या इंडिग्रेंट्स डाले हुए हैं। હું તમને હિન્દીમાં કહું વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આમાં રેપરમાં શું શું છપાયેલું હોય છે એ કહેવા માગું છું કે 100% એ વેજીટેરિયન હોય છે, એવું સિમ્બોલ પણ જો વિદ્યાર્થી મિત્ર આવ્યું, આ 100% वेजिटेरियन છે, बारकोड नंबर છે, वजन હોય છે, ये सब उपयोगी बातें इस रेपर में छिपी हुई है। तो मैं आपको आगे का प्रश्न समझाती हूँ। आगे का प्रश्न है, नीचे दिए गए कोष्टक में से सही शब्द चुनकर संकेत चुनकर लिखना है। तो यह बेड है, ये डॉक्टर की निशानी है, तो यह हॉस्पिटल का चित्र है, तो हमें लिखना है। यहाँ लिखा है, देखो काउंस में हॉस्पिटल, तो आपको लिखना है हॉस्पिटल। यह पहला प्रश्न का जवाब है। दूसरा, ये रेलवे क्रॉसिंग का चित्र है, तो यहाँ दूसरा जवाब आएगा रेलवे क्रॉसिंग। तीसरा, पैदल चलता है कोई यात्री, तो यह पैदल यात्री का चित्र है। और जो चौथा सिंबल है वो साइकिल का है, तो साइकिल क्रॉसिंग, वहाँ साइकिल ही चलेगी, ऐसा हमें ये संकेत में दिखाई देता है। तो चौथा आएगा साइकिल क्रॉसिंग। तो आपको यह 4 संकेत समझ में आ गए हैं। अब ये प्रश्न आपको जो जोड़ाक्षर शब्द है वो आपको अपने कापी में लिखना और बड़े से ऊंचे आवाज़ में पढ़कर आपको बोलना है। आगे मैं बताती हूँ विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय का प्रश्न भी मैं आपको समझा दूंगी। ये प्रश्न के उत्तर में आपको
अपनी कापी में लिखने के लिए दूंगी। मैं आपको लिख कर दूंगी, आपको यह प्रश्न के जवाब देख कर लिखना है। फिर खाली जगह है, खाली जगह बहुत ही आसान है, यह भी आप एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। वो खाली जगह भी आपको अपनी तरह से ही लिखनी है। एक दो खाली जगह मैं आपको बता देती हूँ विद्यार्थी मित्र, इसलिए आपको यह खाली जगह पूरने को आसान हो जाएगा। रोटी को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। मुंह में એટલે કે અંદર જે એક લીટા માત્રાવાળો શબ્દ છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં એટલે કોઈ વસ્તુની અંદર એવો અર્થ થાય છે, એટલે મેં એટલે કે મોંમાં પાણી આવી ગયું. અને બીજું છે તું જે રોટી ન લેને જાને દૂંગા, એટલે એમાં બે માત્રાવાળો મેં આવે, એટલે કે પોતાના માટે સ્વયં માટે જે શબ્દ વપરાતો હોય એના માટે બે માત્રાવાળો મેં આવે. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાલી જગ્યા પણ તમારી જાતે તમારે કરવાની છે. ત્યાર પછી જળમાં એટલે પાણીમાં રહેતા पशु पंखियों, थल में એટલે जमीन पर रहता पशु पंखियों और पेड़ पर रहने वाले पशु पंखी के बारे में आपको विद्यार्थी मित्र लिखना है, ये भी आपको आ जाएगा. और फिर भाषा सज्जता, भाषा सज्जता में आपने जनरल नॉलेज के सब प्रश्न के उत्तर 5 दिए गए हैं, वो अपनी कापी में आपको लिख लेना है. मैं उसके उत्तर भी आपको अपनी कापी अपनी पुस्तक में लिख कर दूंगी, आपको सब उसे पढ़कर समझकर अपनी पुस्तक में लिख लेना है. तो यह विद्यार्थी मित्रों आपको भरत मिलाप पाठ समझ में आ गया होगा. कोई भी प्रश्न हो तो एक बार ध्यान से ये वीडियो देख लेना, आपको आ जाएगा. आभार.